الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت اور حسب معمول۔ اس سلسلے میں آپ اپنے مالی معاملات، تجارتی لین دین اور اس قسم کے جو بھی سوالات، اشکالات آپ کے ذہن میں ہیں، واٹس اپ نمبر موجود ہیں اسکرین پہ، کال نمبر بھی موجود ہے، آپ کال کر سکتے ہیں، واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں شامل سلسلہ کریں گے اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ مفتی صاحب سے اس پہ شرعی رہنمائی لیں گے، آپ کی طرف بڑھائیں گے۔ سلسلے کی شروعات کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ قراۃ والقراۃ مثل الاحد، کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو ایک قرات اجر دیتا ہے، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کال لیں گے اور کال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ جی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی 1 لاکھ لگائے اور دوسرا بھی 1 لاکھ لگائے، دونوں مل کر 1 لاکھ لگا کر ایک کاروبار شروع کرتے ہیں، تو ایک آدمی کاروبار کو دیکھتا ہے اور دوسرا اس کو یہ کہتا ہے کہ میں مہینے کے بعد آ کر تجھ سے اس کا پرافٹ لے کر جایا کروں گا اور میں مہینہ پورا نہیں آؤں گا۔ کیا اس کے لیے یہ جائز ہو گیا کہ وہ مہینے کے بعد آ کر اس سے وہ پرافٹ لے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے جو صورت بیان کی ہے، اس صورت کے حوالے سے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ یہ صورت ہے شرکت کی۔ اس صورت کو شرکت کہتے ہیں، یعنی دونوں افراد، دونوں پارٹنر، یا اگر زائد ہوں تو تمام کے تمام جی اپنے اپنے پیسے ملائیں۔ دوبارہ بیان کر دیتا ہوں میں کہ جو صورت پوچھی گئی ہے، اس صورت کے اندر 2 افراد شامل ہیں، دونوں نے اپنے پیسے ملائے ہیں۔ تو جب دونوں ہی افراد اپنے اپنے پیسے ملائیں تو ایسی صورت کو شراکت کہتے ہیں۔ شراکت کے اندر ایک تو یہ ضروری نہیں کہ دونوں یا زائد افراد ہوں تو سب برابر برابر پیسہ ملائیں گے، کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو صورت پوچھی گئی ہے اس میں دونوں کے پیسے برابر ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جو ان کے ذہن میں، جو سوال کرنے والے کے ذہن میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کام کر رہا ہے، دوسرا کام نہیں کر رہا، جی اور وہ روزانہ آ نہیں سکتا، صرف نفع لینے آئے گا۔ جی دیکھیے، جو نفع کا استحقاق ہوتا ہے، آپ نفع کے حقدار جب بنتے ہیں تو 2 وجہ میں سے ایک وجہ کا پایا جانا ضروری ہے، یا تو آپ کی محنت پائی جا رہی ہو یا آپ کا پیسہ پایا جا رہا ہو۔ شراکت کے اندر اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ ایک شخص، ایک پارٹنر کام کرے، دوسرا سلیپنگ پارٹنر ہو، وہ عملی طور پر کام کرنے نہ آئے۔ دونوں ہی افراد کا مل کر کام کرنا ضروری نہیں ہے، دونوں افراد کے پیسے ملائے جائیں گے، اس سے کام شروع ہوگا۔ اگر ایک شخص کام کرے گا تو یہ بھی ٹھیک ہے، دوسرا بے شک کام نہ کرے۔ یہ جو ہے وہ سلیپنگ پارٹنرشپ کی صورت ہے، اگرچہ کہ سلیپنگ پارٹنر جو ہے وہ مداربت کی صورت میں بھی رب المال کو بھی کہا جاتا ہے، انویسٹر کو بھی کہا جاتا ہے۔ جی تو اس صورت کے اندر شراکت ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کا کاروبار کس نوعیت کا ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں روزانہ نفع نکل آتا ہے۔ مثال کے طور پر سبزی کا کام ہے، کسی نے آ کے جو ہے وہ ٹھیلا لگایا، شام کو سبزی ختم ہو گئی اور نفع مل گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ پکوان یا کھانے کے دکانیں لگاتے ہیں، تو صبح لے کر آتے ہیں، شام کو ختم ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کیا نفع ہوا کیا نقصان ہوا۔ تو ہر کاروبار کی نوعیت ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ اب کریانے کی جو دکان ہے، اس میں روزانہ نفع نکل آئے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس کی کلوزنگ مہینے بعد بھی ہو جائے، ممکن نہیں ہے۔ تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کاروبار اس نوعیت کا ہے جس کا نفع نکل آتا ہے، مہینے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ جناب
اتنا نفع ہوا ہے، اتنا نقصان ہوا ہے، اور فیصد کے اعتبار سے نفع مقرر ہو اور دوسرا پارٹنر اپنا نفع لے لے، اس کی گنجائش اس کی گنجائش موجود ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا نفع نہیں لے رہا، بلکہ نفع تو ابھی نکلنا ہے سال بعد، 6 مہینے بعد، لیکن ایک یہ ہوتا ہے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے طور پر کہ بھئی گھر تو چلانا ہے نا، گھر چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ خرچہ لیتے رہیں گے، بعد میں یہ خرچہ نفع میں شمار ہو جائے گا، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر یہ واپس کرنا پڑے گا۔ یہ صورت اختیار کرنا بھی جائز ہے۔ تو سائل کے ذہن میں جو اصل شبہ تھا اس کا جواب میں نے دے دیا کہ وہی سمجھتے ہیں کہ مجھے روزانہ کام پر آنا ضروری ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک، اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ میں مکان گروی پہ لے رہا ہوں، لے کے کرائے پہ دے دوں تو وہ جائز؟ مکان گروی رکھ رہے ہیں اور آگے کرائے پر دے دیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ایک دفعہ دوبارہ یہ فرما دیں کہ آپ جو گروی پہ مکان لے رہے ہیں تو آپ گروی پر مکان لیتے ہوئے کتنے پیسے آپ نے دینے ہیں، اور ایڈوانس کے طور پہ، اور کرایہ آپ دیں گے یا نہیں دیں گے، تو پھر میں تفصیل سے جواب دے دیتا ہوں۔ اور مختصر جواب یہ ہے کہ گروی پر جو آپ مکان لیں گے، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ وہ جائز ہو، آپ کا اپنا لینا جائز ہو۔ آپ کا اپنا لینا جائز ہوگا تو ہم اگلے اسٹیپ کی طرف جائیں گے کہ آپ اس کو کرائے پہ بھی دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ ہمیں تو اس پر ہی شک ہے، بلکہ کافی حد تک ظن غالب ہے کہ یہ صورت آپ کی جائز نہیں ہوگی جس طرح لوگ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ تفصیل بتا دیں کہ آپ جو مکان لے رہے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ ٹھیک، سلسلے کی شروعات ہے، دوبارہ کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ضرور شامل سلسلہ کر لیں گے۔ اگلی کال دیجیے۔ پیارے اسلامی بھائی، میں اس طرح کاروبار کر رہا ہوں کہ مال کسی دوسرے کا ہے اور محنت ساری میری، اور پرافٹ 50% ہوتا ہے۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ نقصان ہونے کی صورت میں کس کے ذمہ ہوگا؟ نیز یہ مشینیں وغیرہ کی جو قیمت کم ہوتی جا رہی ہے یا خراب ہو جاتی ہیں، یہ کس کی ذمہ داری ہوگی؟ جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے، پہلا جو سوال آیا تھا وہ شرکت کے حوالے سے تھا، دونوں نے پیسے ملائے تھے۔ جی، یہ تیسرا سوال آیا ہمارے سلسلے کے اندر، یہ مداربت کے حوالے سے، ایک کا پیسہ ہے اور ایک کی محنت ہے۔ ٹھیک، ایک کا پیسہ اور ایک کی محنت ہو تو اسے مداربت کہتے ہیں، اور مداربت کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو انویسٹر ہے وہ اپنے پیسوں کے بدلے نفع لیتا ہے، ایک شرعی طریقہ ہے یہ۔ ٹھیک، کام کرنے والا اپنی محنت کے بدلے نفع لیتا ہے۔ صحیح، کام کرنے والا کام کرتا ہے، اور وہ کام کرنے والا جو ہے وہ جی، کام کرنے والا وہ نہیں لیتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس کے پاس انویسٹ نہیں ہوتی، اور وہ جو ہے صرف محنت کرتا ہے۔ انویسٹر کے پاس تجربہ نہیں ہوتا ہے، جو کوئی بھی غرض ہوتی ہے، انویسٹر جو ہے وہ اپنا پیسہ دے کے الگ ہٹ جاتا ہے، ورکر ہی کام کو لے کر چلتا ہے۔ ٹھیک ہے اب معاملہ یہ ہے کہ اصل سوال یہ تھا کہ نقصان کس کے ذمہ ہوگا؟ جی، پروفٹ 50% لے رہے ہیں۔ جی، میرے پاس 2-4 دن پہلے کسی نے سوال پوچھا کہ یوں کام ہوتا رہا اور 6 لاکھ سے کام لیا، مداربت کی صورت تھی، اور سب کام جب کلوز ہوا تو 6 لاکھ کچھ ہزار روپے باقی تھے۔ صحیح، تو کہنے لگے یہ نقصان میں کیسے پورے کروں؟ تو میں نے کہا نقصان تو ہوا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نقصان کسے کہتے ہیں پہلے تو اس کا سمجھنا ضروری ہے نا۔ ٹھیک، جو کیپٹل کی رقم ہے جس سے انویسٹ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، بھی کام کرنے والے کو مدارب نے پیسے دیے صحیح، کہ تم یہ پیسے لو، تو مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے۔ 5 لاکھ روپے، ٹھیک، ٹھیک ہے، اس کو کیپٹل کہیں گے صحیح، یا اصل رقم کہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل رقم جو ہے وہ مثال کے طور پر کسی نے دکان لگانی ہے، صحیح ہے، اب دکان لگانی ہے تو دکان کے ایکسپینس بھی ہوں گے، صحیح ہے، کچھ کرائے میں جائے گی، کچھ فرنیچر رکھا جائے گا، کچھ اور ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں کا جو مالک ہے جی، وہ انویسٹر ہوگا۔ صحیح، یہ رننگ ایکسپینس بھی اسی کے ذمہ۔ میں عرض کر رہا ہوں، جی، اس کی تفصیل ہے، رننگ ایکسپینس کی تفصیل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو فرنیچر وغیرہ اور یہ جو چیزیں ہیں، جی، مثال کے طور پر کاروبار کلوز ہو جاتا ہے اور 4 لاکھ 80 ہزار روپے باقی بچتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نقصان ہوا ہے،
क्योंकि 20,000 का मिसाल के तौर पर फर्नीचर मौजूद है, ठीक है, तो अब ये बराबर हो गए। बराबर हो गए। ठीक है, देखा जाए तो वो मतलब कि एक तरह से तो फायदा नहीं हुआ। ठीक है, नुकसान उस सूरत में होता है कि जब कैपिटल पूरा ना हो सके, ठीक है, कैपिटल में लॉस होगा तो नुकसान माना जाएगा। नुकसान माना जाएगा। अब एक्सपेंस जो हैं, जी, जो ज़रूरी एक्सपेंस हैं वो काम में शामिल होंगे। सही, जो वर्कर है वो अपने जेब से तो नहीं देगा, ठीक है, वो काम से पूरे किए जाएंगे, जो इन्वेस्ट उसे मिली है उससे से पूरे किए जाएंगे। जी, हाँ, जो मिसाल के तौर पर एक्सपेंस क्या हो सकते हैं, किराया हो गया, या माल अगर आया है तो माल जो है वो लाने के जो ज़राए आमदनी, जो ज़राए इख्तियार किए गए उस पर जो पैसा लगा वो दिए जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर दुकान पर कोई लड़का रखा गया है काम करने के लिए, उसके पैसे दिए जाएंगे। ठीक, ये चीज़ें शुमार होंगी एक्सपेंस के अंदर। सही, जो काम करने वाला है वो अगर ये कहे मुझे रोज़ाना का ख़र्चा मिलना चाहिए ठीक है, और मुझे रोज़ाना की जो है वो कुछ ना कुछ इतने पैसे मिलें कि मैं अपने जो है रोटी पानी खा सकूं, ठीक है, इसकी गुंजाइश नहीं है। सही, यानी जो वर्किंग पार्टनर है उसको कुछ नहीं मिलेगा। वर्किंग पार्टनर को उजरत के तौर पर कुछ नहीं मिलेगा ठीक है, और एक्सपेंस के तौर पर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, अगर वो शहर से बाहर जाता है, सही है, शहर से बाहर जाता है तो फिर जो है वो जो भी एक मारूफ उर्फ के मुताबिक, जो मिलता है वो उसे मिलेगा। ठीक। और शहर से बाहर भी काम के लिए जाए सही है, तो यहाँ ये बड़ी गलत फहमी है। लोग ये समझते हैं कि जो वर्कर है वो भी अब रोज़ाना कुछ ना कुछ, ज़ाहिर बात, उसको खाना खाना होता है, दीगर एक्सपेंस होते हैं, वो आता है जाता है, पेट्रोल लगता है, ठीक है, तो उसको बतौर एक्सपेंस उसके जो ज़ाती अखराजात है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है। मुफ्ती अब यहाँ पे इसको जो मिल रहा है काम के वजह वो तो प्रॉफिट है, यूँ होगा। उसको मिलना है ना, प्रॉफिट ठीक है, मिलना है इसको। ठीक है, इसने अपनी जो मेहनत मेहनत। मजदूरी है वो दाव पर लगाई है, ठीक है, और जो रोज़ाना का जो एक्सपेंस हो रहे हैं इसके ज़ाती, जी। वो इसने दाव पे लगाए हैं, ठीक है, तो उसने अपनी रकम दाव पे लगाई है। सही। कारोबार में ये होता है ना, ठीक है, या तो नफ़ा हो जाएगा या नुकसान ठीक होगा। है, लेकिन ये जायज़ तरीके से दाव पे लगाई है, ऐसा तरीका नहीं है जो शरन नाजायज़ हो। अब मिसाल के तौर पर दो सूरतें बनी जी, कि काम शुरू होते ही फ्लॉप हो गया, काम शुरू होते ही फ्लॉप हो गया, ठीक है, नुकसान हुआ, नफ़ा हुआ ही नहीं था। सही है, तो नफ़ा ज़ाहिर बात है नहीं हुआ, नुकसान हो गया। जो कैपिटल है वो 5 के बजाय अब 3 लाख बचा है। ठीक है, जहाँ टोटल, जो भी चीज़ें थी इकट्ठा करना था, ये करना था, वो करना था, एक्सपेंस ज़्यादा हो गए, ठीक है, काम भी नहीं चला, आगे भी नहीं चल सकता। सही है, अब जो नुकसान होगा इस सूरत के अंदर, जी। नफ़ा तो हुआ ही नहीं था, ठीक है, वो जो इन्वेस्टर है वही बर्दाश्त करेगा, टोटल नुकसान इन्वेस्टर बर्दाश्त इन्वेस्टर बर्दाश्त करेगा, ठीक है, क्योंकि उसने भी तो अपना नुकसान किया है ना। ठीक है, उसका जो योमिया एक्सपेंस था वो उसका नुकसान हुआ है। ठीक, वो यहाँ खड़े होने के बजाय अगर कहीं और जाके काम करता तो उसे ब्रोकरी मिलती या तनख्वाह मिलती और बहुत सारी उसे चीज़ें मिल सकती थी ठीक, आमदनी के तौर पर। उसने अपना वो नुकसान किया है। ठीक है, दूसरी सूरत ये बनती है कि नफ़ा भी हुआ है। ठीक है, मिसाल के तौर पर पहले साल में काम में नफ़ा नहीं हुआ, आइंदा 2 सालों में काम में नफा हुआ, ठीक ठाक नफ़ा हुआ, ठीक है, और चौथे साल में जाके बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ठीक है, अब ये सूरत है बड़ी ही दिलचस्प भी और अजीब भी। ठीक, इस सूरत के अंदर फ़िक़्ह इस्लामी के जो कवानीन हैं जी, वो ये कहते हैं कि ज़माना माजी के अंदर जी, मुदारिब ने, वर्कर ने जी, जो नफ़ा लिया था ठीक है, या नहीं लिया था और उसका बनता था, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये काम 5 लाख से आगे बढ़ के 20 लाख पे पहुंच गया, सही है, कैपिटल तो 5 लाख ही है, बक्या जो 15 लाख रुपए वो नफ़े के हैं। अब अगर आधे आधा नफ़ा तय किया था तो 7.5 लाख रुपए वर्कर के हुए, 7.5 इसके हुए। ठीक है, तो ये 7.5 लाख रुपए जो हैं, जो वर्कर के हैं, अब नुकसान इससे पूरा किया जाएगा। ठीक है, अगरचे कि ये उस नफ़े को लेके इस्तेमाल कर चुका हो, कुछ भी हो चुका हो, ये उसको वापस देना पड़ेगा। ठीक, ये एक मुश्किल मामला है। फ़ुक़हा इकराम ने इसका एक हल बयान किया है ठीक, कि अगर मुदारबत का मामला हो तो उसको लिमिटेड किया जाए। ठीक है, टाइम पीरियड लिमिट कर लिया, जैसे अगर 6 महीने के लिए मुदारबत की, साल के लिए की, ठीक, फिर वो मायदे को रिन्यू किया जाए। ठीक है, जब मायदा रिन्यू होगा और नया मायदा होगा, ठीक है, फिर अगर कोई नुकसान होता है तो साबका सालों की तरफ ठीक है, जो इस मायदे से पहले के थे पिछले मुआहिदे इसमें शामिल नहीं होंगे, वो शामिल नहीं होंगे और मुदारिब से नुकसान नहीं लिया जाएगा, ठीक है, वरना नुकसान की ये सूरत है। ठीक है। मुझसे एक शिक इसकी ये भी थी कि मशीनें जो ख़राब हो रही हैं कीमत ये भी इसी में आ गई है।
ये दौर जदीद का एक नहायत ही अहम सवाल है। अच्छा, ये शिक जो इन्होंने ये बनाई। शिक है। ठीक है। असल में कारोबारी दुनिया में ये होता है कि एक्सपेंस शामिल किए जाते हैं ठीक कि है। भाई साल के अंदर जो है वो क्या अखराजात हुए, ठीक है। बुक मेंटेन होती है, और जहाँ कहीं भी कोई ऑडिटर बैठता है, जी पढ़ा लिखा ऑडिटर, जी। तो वो गाइडेंस भी देता है कि इस तरीके से आप अपने कारोबार को मैनेज करें, ठीक। और नुकसान हो जाएगा। तो आम दुकानदार हैं वो इसका हिसाब नहीं लगा रहे होते, जी वो यानी सिर्फ एक ज़ाती बुनियाद पर ही, ज़ाती सोच पर ही काम कर रहे होते हैं। ठीक। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं सिस्टम के तहत काम करते हैं। सही है। पढ़े लिखे से बात ये है कि जिनका काम थोड़ा बड़ा है और ऑडिटर भी बिठा दिया है, बाकायदा एक प्रोफेशनल अंदाज में काम अंदाज कर में रहे काम हैं। करते ठीक हैं। है। अब उसमें क्या होता है कि वो ये देखेंगे स्टॉक कितना है, और हमने कितना पैसा देना है, कितना पेएबल है, कितना रिसीवेबल है, सही। सब चीज़ों का हिसाब लगा के कंपनी की बैलेंस शीट जब बनाएंगे जी। तो वो ये देखेंगे कंपनी का जो असासा है वो कितने का है। ठीक है। मिसाल के तौर पर जो फर्नीचर था जी। ये 1 लाख रुपए का लिया गया था। सही है। कंपनी ने एक गाड़ी ली थी 5 लाख रुपए की। सही है। कंपनी के पास 5 लाख की मशीनें हैं, ठीक है, 11 लाख हो गए। 11 लाख रुपए हो गए। ठीक है। तो जब साल गुजरेगा तो वो एक फार्मूला लगाकर जी। आइंदा साल के लिए इसकी कीमत कम शुमार करेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्जेस लगाएंगे। डेप्रिसिएशन जो है ना वो करेंगे, चार्जेस तो नहीं लगाना कहेंगे, जी। एक हिसाब में मेंटेन करेंगे कि अब आइंदा जो ये अपना डेप्रिसिएशन वैल्यू लगाएंगे। जो असासा है जी। ये 11 लाख का नहीं, बल्कि अब आइंदा साल इसको 10 लाख का शुमार करेंगे वो। ठीक है। उससे आइंदा साल इतने लाख का, उससे आइंदा साल इतने लाख का। ठीक है। और अगर मुदारबत की सूरत है तो मैं ये समझता हूँ कि जो डिप्रिसिएशन है मुदारिब के साथ जी। जितना उर्फ बनता है, और उर्फ से भी अगर फजल की तरफ देखा जाए तो इतनी उसकी वैल्यू कम हुई होगी। अगर किराए पर भी मशीनें ली जाती जी। तो जाहिर बात है उसका भी तो किराया देना पड़ता और नफ़े में वो काउंट होता। जी। तो डिप्रिसिएशन जो है वो कुछ शरीयत के कवानीन से टकराता नहीं है, ठीक है। और इसकी कीमत अगर मुदारबत में कम की जाती है तो कम की जाएगी। सही। लेकिन आखिर में जो ये चीज़ बाकी रह जाएगी जी। ये असासा कंपनी का ही होगा। इसमें एक और चीज़ का ख्याल रखा जाए, एक मसला आया था मेरे पास जी। कि डिप्रिसिएशन लगा के कीमत कम कर दी, सही है। 0 पे पहुंच गई वो, सही है। और अब भी जो है ना वो असासा मौजूद है। ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक। यानी जब तक काम चल रहा है जी। वो 0 पे नहीं पहुंचनी चाहिए। सही, यानी कोई जो फार्मूला लगाएं वो ऐसा लगाएं कि जब तक वो कारआमद है उसकी वैल्यू बाकी रहे। उस पैसे उतने काटा जाए ना उसके, ठीक है। जितने की वो है। ठीक है। यह ना हो कि वो किराए का हिसाब लगाकर काटा जाए, सही। यूँ किया जाए। काफ़ी तफसीली जवाब हो गया और कारोबार के दोनों मूड आ गए मुफ्ती साहब पहले ही सवालों में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी। मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है, क्या जमीन ठेके पर देना जायज है? उसके बारे में उजरत उससे लेना वो जायज है? ठीक है जी, जवाब देते हैं आपको। ज़मीन ठेके पर देना। जी हाँ, ज़मीन जो है वो एक ऐसी कारामद चीज़ है कि दुनिया की कहा जा सकता है कि तमाम कारामद चीज़ों में से फाइक हो। ठीक। ज़मीन तो प्लाट है ना जी, ज़मीन तो ज़मीन रहती है। बुनियाद है। ठीक है। क्या घर बनाना हो तो क्या अनाज उगाना हो, इंसान की जितनी भी ज़रूरियात हैं ज़मीन ही पूरा करती है। ठीक है। और फिर बारिश जो है ना बरस के ज़मीन का साथ देती है, ठीक। आसमान भी साथ देता है। ठीक। तो आसमान तो खैर हमारे कब्ज़ा कुदरत में नहीं है जी। लेकिन यह है कि ज़मीन हमारी मिल्कियत में होती हैं। तो ज़मीन कारामद चीज़ है और किराए पर दिया जा सकता है। किराया सालाना हो, माहाना हो, किराए में तय हो कि खेती बाड़ी होगी तो खेती बाड़ी हो सकती है। ये तय हो कि जी यहाँ गोदाम बनेगा तो गोदाम बन सकता है। ये भी हो सकता है कि ज़मीन आपकी हो, तामीरात उसकी हो, वो 10-15 साल के लिए अपनी तामीरात कर सके। ठीक। तो ज़मीन को किराए पर देना जायज़ है। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। जी सर, मेरा सवाल है मदनी चैनल से कि जो ये पैसे हैं जो भेजते हैं, कापियाँ वगैरह भेजते हैं, न्यू कापियाँ, और इनके ऊपर से पैसे लेते हैं। मसलन 1000 की कापी होती है, वो बेचते हैं 1200 की, 1100 की या 1050 रुपए की। सर ऊपर जो पैसे लेते हैं ये सूद है या फिर वो कारोबारी लेन में आ जाता है? ठीक है जी, नए नोट महंगे देना। कापियाँ कहा उन्होंने? हाँ, वो कहा उन्होंने ये है, लेकिन मुराद ये कि नए नोट की जो कॉपियाँ होती है ना, गड्डियाँ, वो नोट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया पे। अगर तो कापी से मुराद स्कूल वाली कापी है जी,
तो भी वो तिजारत है, ठीक है, ठीक है ना। स्कूल वाली कॉपी जो है वो अगरचे के कागज़ है तो 1000 की कॉपी 1200 की बेचना जायज़ है, वो एक अलग उसकी हैयत है और नोट की अलग हैयत है, दोनों में फ़र्क है। जिस तरीके से फ़ुक़हा ने भैंस को और भैंस के गोश्त को जो है वो अलग अलग चीज़ें माना है, इसी तरीके से जो है वो अगर नोट मुराद हों तो फिर नोट चूँकि जिन्स एक है, यहाँ भी नोट और वहाँ भी नोट, जी, लेकिन जो है वो अगर नकद हो, ठीक है, नकद हो, जी, कैश हो, उधार ना हो, दोनों तरफ से नकद हो, ठीक, तो कमी ज़्यादती हो सकती है। ठीक है, यानी 1200 रुपये दे के 1000 रुपये नए नोट लिए जा सकते हैं, उधार नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगली कॉल दीजिए। उधार सत्तारी बात का ना उधार का ना। मेरा सवाल ये था कि सेलमैन जो पहले ऑर्डर लेता है फिर वो माल खरीद कर दुकानदार को देता है, क्या ये जायज़ है, या फिर ये जायज़ है कि माल को अपने कब्जे में ले ले फिर ऑर्डर ले ले? ठीक है जी। देखें, ऑर्डर लेना दो एतबार से होता है। एक तो ये है कि हमारे आपने देखा वो दुकानों पे लोग आ रहे होते हैं, वो उनकी डिमांड पूछ रहे होते हैं। कराची जैसे शहर के अंदर दुकानदार को होलसेल मार्केट नहीं जाना पड़ता, जी, कभी कभार जाता होगा वो, जी, लेकिन ज़्यादातर माल वो कोशिश करता है कि उसकी दुकान पर ही मिल जाए। जी, तो लोग आते हैं, उसकी डिमांड लेकर चले जाते हैं। सही, तो इस मौके पर सौदा डन नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर उनके पास माल मौजूद नहीं है तो, जी, उनके पास माल मौजूद है तो डन कर ले, ठीक है, मौजूद है, कब्जे में आ चुका तो डन कर ले। ठीक, जिसके कब्जे में माल नहीं है, जिसने माल ख़रीदा ही नहीं है, जी, वो पहले डिमांड ले ले और उस डिमांड पर अपनी ऑफ़र इरादतन बता दे कि भाई मेरा इरादा ये है कि मैं इतने का आपको दूंगा, और इस पर जो है ना हम सौदा डन नहीं करते। ठीक, जब माल ख़रीद लें, कब्ज़ा कर लें, तो फिर ये है कि सौदा डन कर दिया जाए। एक फ़ोन करे उसको कि भाई माल आ गया मेरे पास, अब इतने में सौदा हमारा डन हो गया। ठीक, जब उसे जाकर देना हो उस वक्त जाके जो है वो सौदा कर ले, ठीक, दोनों चीज़ें मुमकिन है। लेकिन अगर माल मिल्कियत में ही ना हो, या आपने माल ख़रीद तो लिया, ख़रीदने से मिल्कियत तो साबित हो जाती है, ठीक, लेकिन उस पर कब्ज़ा नहीं किया, सही। तो उस वक्त तक अगला सौदा ना करें। मुफ्ती साहब, जो हमारी सूरत राइज है वो ये है कि ऑर्डर लेते हैं जाके, जैसे आपने फरमाया, और फिर मार्केट से लेके सप्लाई देते हैं। असल में देखें, ये एक सूरत बयान की है मैंने। दूसरी सूरत ये होती है कि बड़े बड़े सौदे हो रहे होते हैं फ़ोनों के ऊपर, ठीक है, और वो ऑर्डर लेना ऐसा होता है कि जनाब बस डन हो गया, ठीक, तो वहाँ जो है ना ज़्यादा हुस्सासियत है, ठीक है, और वहाँ इस बात का एहतमाम करना ज़्यादा ज़रूरी है कि सौदा वादे के तौर पर किया जाए, ठीक, डन ना किया जाए। ठीक है। अगली कॉल दीजिए। जी साहब, मेरा आपकी बारगाह में ये सवाल है कि हमें इधर किस्तों पे पैसे मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि 40,000 हम आपको दे रहे हैं और यही 40,000 आपने हमें लौटाना है, तो वो हमें तकरीबन 3300 और कुछ रुपए किस्त पड़ती है, तो ये क्या लेना जायज़ है? और दूसरा सवाल ये है कि मैं दर्जी का काम करता हूँ, किसी से हम 500 सिलाई लेते हैं, किसी से हम 600 ले लेते हैं, तो वो एक आता है तो वो कहता है नहीं मैं तो 500 ही दूंगा, हम कहते हैं कि नहीं हम तो सिर्फ 600 लेते हैं, इससे कम नहीं लेते, लेकिन हम मतलब ये फर्क हो जाता है, किसी से कम किसी से ज्यादा। क्या इस तरह हम बोल सकते हैं? ये झूठ तो नहीं होता इस तरह? ठीक है जी। पहले जो आपने जो मसला बयान पूछा है, वो तो खालिसतन सूद पर मुश्तमिल है कि आप 40,000 रुपये देंगे किस्तों के अंदर, और जो आपने पैसे वसूल करने हैं, जो आपने पैसे उनसे लिए थे वो थे 33,000 या 36,000, ऐसे कुछ आप बता रहे हैं। तो आपने पैसे लिए और फिर आपने किस्तों में 40,000 रुपये दिए, तो ये दो चीज़ें पाई गई। तो एक तो सौदा उधार में हुआ है और कमी ज़्यादती के साथ ये हुआ है, पैसों के बदले दिया गया है, और एक तरफ से कमी है, एक तरफ से ज़्यादती है, तो ये खालिसतन सूदी सूरत है, इसका इख्तियार करना जायज़ नहीं है। दूसरा सवाल आपने ये पूछा कि लोग आते हैं और आने के बाद वो पूछते हैं कि जनाब कितने का रेट और कितने का नहीं, तो दुकानदार को इस बात का हक है कि वो अपने स्टैंडर्ड जो रेट हैं वो बयान कर दे। ठीक। और ये भी कह सकता है कि भाई हम ये इतने का बेचते हैं, इतने का देते हैं, और कुछ ग्राहकों को आप बेच भी रहे हैं इतने का, इस बात में भी शक नहीं है। वैसे दर्जियों के यहाँ कराची में तो बार्गेनिंग कम होती है, क्या ख्याल है मेरे भाई? जी बिल्कुल कम होती है। यहाँ तो
बिल्कुल जो है ना वो लोग फिक्स प्राइस होता है। जो लोहे पर लकीर वाले रेट हैं वो होते हैं, जी ऐसे होते हैं। बढ़ जाते हैं हर साल, कम नहीं होते। तो कहीं बारगेनिंग कोई करता है तो बारगेनिंग करना भी जायज़ है, उसका हक है जो ग्राहक आया है आपके पास कि वो आपसे बारगेनिंग करे। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि आपने जो पहले बोल दिया था उस वो झूठ था, खिलाफ वाक़े था। झूठ कहते हैं खिलाफ वाक़े बात को, यानी ऐसी बात को जो वाक़े ना होती हो। चूँकि आपका एक स्टैंडर्ड रेट मुकर्रर है और उस स्टैंडर्ड रेट पर भी आप काम करते रहे हैं, ठीक तो इसलिए उस शख्स को कहना खिलाफ वाक़े नहीं होगा, झूठ नहीं होगा। ठीक है। मतलब इनका जो पहला सवाल था उसके बारे में बताया गया है कि 40,000 रुपये लेते हैं और फिर 3300 रुपये या 3500 रुपये किस्त देते हैं, यानी इजाफा नहीं देते, तो ऐसी सूरत में जायज़ है? 40,000 रुपये उधार लिए कैश, अच्छा, पूरे यकमुश्त, और फिर 3300 या 3500 रुपये की किस्त बना दी जाती है, इजाफा नहीं, इजाफी रकम कोई नहीं ली जाती, तो क्या इस सूरत में जायज़ है? शरात नहीं थी कि इजाफी रकम नहीं ली जाती, ठीक है, शरात नहीं थी। सराहत, ठीक ये सवाल था कि 3400 रुपये की किस्त बनाई जाती है, जी, वापसी में किस्तों में दिया जाता है। तो वापसी में जो दिया जाता है तो फिर कितना जो है वो ज़्यादा देते हैं ये। ठीक है, जो तरीक़ेकार राइज हैं आमतौर पर जो सरकारी महकमे हैं उनके मुलाजमीन को नेशनल बैंक ऑफ़र करता है जी, कि आप हमसे जो है वो अपनी तनख्वाह एडवांस में ले लें, ठीक है, हम आपको 1 साल की तनख्वाह दे देते हैं। ठीक, तो लोग जब वो अपनी 1 साल की तनख्वाह निकाल लेते हैं, जी, हालांकि वो नाम दिया जाता है कि आपकी तनख्वाह हम एडवांस में दे देते हैं, हकीकतन तो वो कर्ज होता है। ठीक है, गवर्नमेंट तो हर महीने तनख्वाह दे रही होती है, ऐसा तो नहीं है कि वो साल भर की तनख्वाह उनको दे दी है, ठीक। उनके अकाउंट में मौजूद है, ऐसा तो नहीं है। तो वो एक कर्ज दे रहे होते हैं और ये देख रहे होते हैं बंदे की पोजीशन ऐसी कि दे देगा वापस। ठीक है, तो उन्होंने मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए दे दिया, सही है, अब वो बैंक 2% 3% से वापस लेता है ज्यादती के साथ, ठीक, तो वो सूदी सूरतें होती हैं। ठीक, तो यूं देने वाला जो है अगर तो कोई ऐसा चैरिटी इदारा होगा तो मुमकिन है कि वो ज्यादती में ना लेता हो, ठीक है, वो पूरे ही वापस लेता हो। ठीक है, और चैरिटी इदारा ना हुआ तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि वो ज़्यादती में ना लेता हो। ठीक है, हाँ, कोई शख्स ऐसा हो कि जो खुदा तरस आदमी हो, जी, गरीब की मदद के तौर पर उसने दे दिए और वापस उतने लिए जितने दिए थे, ये जायज़ सूरत है। ठीक है। अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि इसके हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, तो सीजन शुरू होने से पहले मसलन हम दिसंबर में फैक्ट्री वालों को 5 लाख रुपए देते हैं और हम कहते हैं कि मार्च में हम जो है ना जो मौजूदा रेट है जिस चीज का, तो मार्च में हम आपसे खरीदेंगे, तो ये हमारा 5 लाख रुपया हो गया, तो आप इस रेट पे हमारे साथ ना बॉन्ड हो गए, तो 5 लाख आप ले लें, तो 5 लाख की बजाय आप अपने ना 10 लाख रुपए का हमें इसी रेट में माल देना है। तो बाकी जो पैसे हैं वो तो हमने उनको बिल्कुल नकद ही देने हैं, लेकिन हमें उसके रेट के साथ बॉन्ड करना है, तो ये करना कैसे है? ठीक है जी। शरीयत मुतहरा के 2 कवायद मेरे जहन में आ रहे हैं इस वक्त जी। एक तो कायदा है अल अम्रु बिल मकासिद, ठीक, मकासिद पर दारोमदार है। सही। दूसरा कायदा ये है कि अल एतिबारु लिल मानी ला लिल अल्फाजी वल मबानी, ठीक, के सौदों के अंदर अल्फाजों का एतबार नहीं होता, सही, सौदों के अंदर जो मानी है मकसूद है उसका एतबार होता है। ठीक, तो जो अल्फाज ये बयान कर रहे हैं वो अल्फाज तो ऐसे हैं कि उस पर कलाम हो सकता है, ठीक है, लेकिन इनका जो असल मकसूद है वो वाज़ेह है। सही, जो ख़रीदारी होती है, हमें थोड़ी देर पहले कब्ज़े की पर गुफ्तगू की, ख़रीदारी 2 तरह की होती है। यानी जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो बेचने वाले के लिए ज़रूरी है कि बेचने वाले के पास वो चीज़ मौजूद हो, वो कब्ज़ा कर चुका हो, फिर आपको दे। जी, ये वंस मोड ऑफ ट्रेडिंग है, एक मोड ऑफ ट्रेडिंग है, सही, पहला मोड ऑफ ट्रेडिंग है। सही, सेकंड ये है कि जिससे आपने चीज़ ख़रीदनी है उसने बनाकर आपको देनी है। सही, मिसाल के तौर पर कोई फैक्ट्री गारमेंट्स बनाती है, आप सौदा नहीं करेंगे तो वो लेकर कैसे आएगा माल, ठीक है, उसके पास तैयार तो नहीं रखी होंगी। सही, तो जहाँ मेकिंग का अमल पाया जाता है बनाकर आपको देगा, जी, ये दूसरा मोड ऑफ ट्रेडिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि जो बेचने वाला है उसकी मिल्कियत में वो प्रोडक्ट मौजूद हो, तैयार हालत में मौजूद हो, कब्ज़े में मौजूद हो, बल्कि उसके साथ सौदा होगा, जी, उसको कुछ पैसे भी दे दिए जा सकते हैं और उस सौदा होने के बाद
پھر وہ چیز بنا کر دے گا، اس بات کی گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک اس کی سب سے بڑی مثال جو ہماری عقلوں میں جلدی آئے گی وہ ہے یہ فلیٹس، ٹھیک جو رہائشی فلیٹس بنتے ہیں جی یا فلیٹس کی طرف پہ جو بھی چیزیں بنتی ہیں، دکانیں ہوں، دفاتر ہوں یا گھر ہوں، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب بلڈر پروجیکٹ اناؤنس کرتا ہے ٹھیک ہے، لانچ کرتا ہے، تو وہ جگہ بڑی سستی مل رہی ہوتی ہے، صحیح پتہ ہے کہ جناب یہ 5 سال بعد تیار ہونی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت اس کا وجود بھی نہیں ہوتا، صحیح اس کی بکنگ جائز ہے، ٹھیک ہے، اس کی بکنگ ناجائز نہیں ہے، ٹھیک فرسٹ بکنگ جائز ہے، اس پر کوئی کلام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اس پر کلام ہے کہ کسی نے وہ بکنگ تو کروا لی، فائل اس کو مل گئی، اب فلیٹ تیار نہیں ہوا، اس نے آگے بھیج دی، اس ٹھیک پر کلام ہے۔ ٹھیک اب اس نے بکنگ کروا لی، صحیح ہے، اب کیا ہوگا، بلڈر اس کو بنائے گا، آہستہ آہستہ پیسے لیتا رہے گا، بناتا رہے گا، جب یہ تیار ہو گیا، لوگوں نے قبضہ کر لیا، اب اس کی قیمت کچھ اور ہوگی۔ صحیح تو انہوں نے جو کہا کہ جی ہم اس کو باؤنڈ کرتے ہیں، اسی قیمت پہ آپ کو دینا ہے، جی تو یہ بارگیننگ ہے صحیح کہ ہم آپ سے آج سودا کر رہے ہیں، یہ چیز آپ نے بنا کے دینی ہے ہمیں، جی اور یہ چیز اتنے کی بنا کے دینی ہے۔ ٹھیک لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا الیکٹرونکس، ٹھیک ہے، جی اور فیکٹری کا لفظ بھی کہا، جی تو اگر تو آپ معاہدہ کرتے ہیں فیکٹری سے اور وہ فیکٹری آپ کو تیار کر کے دے گی، ٹھیک ہے، تیار کر کے دے گی تو گنجائش ہے، صحیح تیار کر کے دے گی تو گنجائش نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی ڈیلر سے سودا کیا ہے، آپ جو ہے وہ ہول سیلر ہیں، آپ کے پاس بھی کافی مال ملتا ہے، لیکن آپ نے کسی ڈیلر سے سودا کیا ہے، ڈیلر مال تیار شدہ دے گا منگوا کر، ٹھیک ہے، تو یہ میکنگ والا سودا نہیں ہے۔ صحیح میکنگ والے سودے کو فقہ کی زبان میں استثناء کہتے ہیں، استثناء الف سین تے صاد الف عین، جی استثناء، بے استثناء۔ ٹھیک تو میکنگ کا عمل جہاں پایا جائے وہاں چیز تیار ہونا، ملکیت میں ہونا، قبضے میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ جہاں یہ صورت پائی جائے گی گنجائش ہے، دوسری صورت پائی جائے گی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی کچھ کالز بھی لیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو 1-2 کالز مزید لیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ پیر کے دن انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب مدنی چینل پہ کچھ کرنے جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں، اور تشہیری مدنی گلدستہ ہے، بہت اہم سلسلہ ہے، دیکھیں۔ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اہم ترین رکن حج کس پر فرض ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ شرف دے حج کا مجھے بہر مصطفیٰ یا رب۔ میڈیا کی تاریخ میں اس نوعیت کا سلسلہ اور ان ایام میں یہ مدنی چینل کا خاصہ ہے۔ عموماً ہمارے یہاں ہوتے ہیں میاں بیوی حج پر جاتے ہیں، تو اب اکیلا جا سکتا تھا، مگر وہ پھر برا لگتا ہے نا، اپنی بچوں کی امی کو نہیں لے جائے گا، لوگ تانے دیتے۔ شریعت نے جب بدنی عبادات کے اندر، مالی عبادات کے اندر انفرادی حیثیت کا لحاظ رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو حج کے اندر بھی انفرادی حیثیت کا لحاظ رکھا ہے۔ تو جب اس کی استطاعت ہو گئی، یہ نہ سوچے کہ میرے والد صاحب نہیں گئے میں کیسے جاؤں، والدہ نہیں گئے میں کیسے جاؤں، شریعت کا حکم ہے، اس پر فرض ہو گیا، اس کو جانا پڑے گا۔ جس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید مجھ پہ حج فرض ہو، جس کو 1% بھی محسوس ہو رہا ہے نا، 1% تو اس کو یہ سلسلہ دیکھنا چاہیے۔ یا الہی حج کرو تیری رضا کے واسطے، دیکھیے سلسلہ حج کس پر فرض ہے، 15 جنوری بروز پیر رات 9 بجے براہ راست مدنی چینل پر۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یہ سلسلہ بھی آپ نے دیکھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس میں آپ کی لائیو جو ہمارا طریقہ کار ہے کالز لینے کا، انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لی جائیں گی، اور مفتی صاحب اس میں اس سلسلے سے متعلق، حج سے متعلق جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ ابھی بڑھتے ہیں دوبارہ احکام تجارت کی کالز کی طرف، آپ کے سوالات کی طرف۔ جی محمد شمون رضا تاری کاتب پورا مدینہ الاولیاء سے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا علاقہ آموں کے باغات کا ہے، یہاں پر روٹین یہ ہے کہ آموں کے باغات ابھی پھل آیا نہیں ہوتا، خریداریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کس وقت خریداری کرنی چاہیے آموں کے باغ؟ پھل آ جائے کس چیز کا انتظار کیا جائے، یا پھل سے پہلے ہی خریداری کی جا سکتی؟ ٹھیک ہے جی۔ مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے تھے؟ لاہور سے۔ مدینہ الاولیاء تو ملتان شریف ہے،
लाहौर में तो आमों के बाग नहीं है जी। देखिए, मुल्तान की पहचान आम इतनी मशहूर नहीं है, हमारा इलाका है आम वाला तो, मिरपुर खास, आपका इलाका तो खास है। खैर, मिरपुर खास। तो सवाल बहुत पेचीदा है ये, ठीक, कि ख़रीदारी किस वक्त करनी चाहिए। ठीक, बहुत पेचीदा सवाल है। और यानी फ़ुक़हा आम की असल में ख़रीदारी उस वक्त हो जाती है कि जब बूर भी नहीं आया होता। बूर यानी फल जब लगता है ना, सबसे पहले एक डंडी निकलती है, ठीक, वो डंडी पर बूर लगता है, यानी दाने दाने से हल्के हल्के से लगते हैं। ठीक, फिर छोटी छोटी सी जो ना वो जो आम की केरी तो बहुत बाद में जाके बनती है, छोटी सी जो ना केरी निकलती है, ठीक है। फिर उसके अंदर गुठली पड़ती है, ठीक, फिर जाके आम तैयार होता है, गुठली पक्की होती है। तो जब वो डंडी भी नहीं निकली होती, जब वो बूर भी नहीं आया होता, आम ठेके के बागात जो है ठेके पे बिक जाते हैं। ठीक, और फसल तो बाद में आती है। ठेके जिसने फिर वो ख़रीदे होते हैं उनका नसीब है, फल आए ना आए। ठीक, आंधियाँ हो गई, तूफ़ान आ गए, कुछ ऐसे तग़य्युरात हुए, फल ही कम आया, जितना तवक्को थी उस तवक्को के मुताबिक नहीं आया। तो असल यहाँ जो पेचीदगी है वो इस एतबार से है कि फसल आई नहीं है और पहले ही जो ना वो सौदा हो गया। ठीक है। तो जैसे कोई जो है वो गंदम का बीज भी ना डाले, सही, और पहले गंदम बेचते, ठीक, तो यही कहा जाएगा ना गैर ममलूक को बेचा है। ठीक है। फिर यह है कि दरमियान में अगर बेचा है तो चलो जो थे वो बिक गए, सही, उसके बाद जो इजाफा होता रहा उनका क्या होगा। ठीक, मसले में पेचीदगी है, इनफरादी मसला है। बेहतर ये है कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फ़ोन नंबर पर राब्ता करके ये मसला पूछ लिया जाए। ठीक है, फ़ोन नंबर भी स्क्रीन पे दिखा दिए जाएंगे। अगली कॉल शामिल सिलसिला करते हैं। जी, मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि आजकल कबाड़ की दुकान पे तरह तरह की खरीदो फरोख्त होती है, तो इसमें लोहा खरीदो फरोख्त होता है और दीगर चीजें अशिया जो हैं वो खरीदो फरोख्त होती है। तो मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि कबाड़ की दुकान हो ना, तो उसमें जो वुमेन्स हेयर यानी खवातीन के जो बाल होते हैं उनकी भी खरीदो फरोख्त होती है। इसके बारे में रहनुमाई फरमा दे कि ये जायज़ है या नाजायज़ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ख़वातीन के जो बाल हैं वो कबाड़ की दुकान पर फ़रोख्त हों या किसी पॉश एरिया के अंदर महंगे तरीन ब्यूटी बार पर या ब्यूटी पार्लर पर फ़रोख्त हों, कहीं भी फ़रोख्त नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को वो अज़मत दी है कि इंसान के जिस्म का कोई भी हिस्सा मार्केट में नहीं आ सकता, यानी काबिल ख़रीद व फ़रोख्त कोई भी हिस्सा नहीं है। ठीक, इंसान की तकरीम है, इंसान की अज़मत है, और शरीयत मुताहरा का यह हुक्म है कि इंसान के बदन के किसी भी हिस्से को यूँ बेचा नहीं जा सकता। तो ये ख़रीद फ़रोख्त हराम है, ना ही वो जो बाल हैं वो माल हैं, और ना ही उनका बेचना जायज़ है। और इनके ज़राए पर भी गौर किया जाता है कि ये बाल कहाँ से आते हैं। इस तरह की भी ख़बरें मौजूद हैं मार्केट के अंदर कि ख़वातीन जब कब्रों में दफन हो जाती हैं तो उनकी कब्रें खोल के बाल काटे जाते हैं, क्योंकि जो बाल के काटने का अमल है वो हमारे यहाँ तो कोई ऐसा रवाज नहीं है। मुस्लिम आबादी है, कोई ऐसा रवाज नहीं है कि जनाब कोई ऐसी मजहबी रस्म आती हो कि औरतें बाल उतार देंगी। ठीक, पड़ोसी मुल्क में सुना है किसी मौके पर ऐसा होता है। ठीक, कि हमारे यहाँ ऐसा कहीं भी नहीं है। तो ये बाल कहाँ से आ जाते हैं। ठीक, तो ख़बरें भी इस तरह की। ठीक, तो अब तो बदरजा औला जो है वो ऐसे बाल ना ख़रीदना चाहिए, ना बेचना चाहिए, ना लगाना चाहिए। ठीक, लगाने वाली औरत को भी डरना चाहिए कि ये ना हो कि कल बग़ैर एहतियात के इसने बाल लगाए हैं जी, इसके साथ क्या हो। ठीक, कमा तो दीन तो दान का मुहावरा भी तो है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आज आप इंसानी अज़मत की तकरीम करेंगे, एहतराम मुस्लिम को पेश नज़र रखेंगे, तो कल आपका एहतराम किया जाएगा। तो ये बाल हरगिज़ नहीं ख़रीद सकते।
ٹھیک ہے، ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا. انشاءاللہ عز و جل کل دن میں آپ دوپہر 1 بجے یہ سلسلہ ریپیٹ دیکھ سکیں گے. اور ہمارا جو فیس بک پیج ہے مدنی چینل کا، لائیو مدنی چینل، اس پہ مدنی چینل پہ ہونے والے لائیو سلسلے کنٹینیو لائیو جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پہ ریکارڈ بھی موجود ہوتا ہے، وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل احکام تجارت آئندہ اتوار کو پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، اور کل بروز پیر رات 9 بجے جیسا کہ پرومو بھی چلایا، تشریح مدنی گلدستہ چلایا، کل مفتی صاحب سلسلہ کریں گے حج کس پر فرض ہے، وہ بھی دیکھنا نہ بھولیے. اللہ عز و جل ہمیں علم دین سیکھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.